बात करें दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लिम्फ. नाउ व्हाट इज माय लिम्फ और इट इज आल्सो कॉल्ड एज दोस्तों टिश्यू फ्लूइड or in other language I can call it as a interstitial fluid and this is a lymph interstitial fluid. now ये क्या है actually? now ये जो lymph है दोस्तों it is another very important circulating fluid है. it is a fluid connective tissue. It is a fluid connective tissue like a blood. MCQ. It is a fluid connective tissue which consists of दो चीजें हैं which consist of that is lymph plasma and lymphocyte. दोनों गोष्ठी which consist of दोस्तों दो ही चीजें which consist of number one that is a lymph plasma means the fluid. Lymph plasma means fluid and दोस्तों that is lymphatic fluid. और number two that is a lymphocyte. Means these are दोस्तों cells. Lymphocyte, these are the either B lymphocyte and T lymphocyte. कौन से lymphocyte होंगे दोस्तों इसमें? B and T और T and B lymphocyte दोनों होते हैं. T and B lymphocyte, these are the cells, lymphatic cells और इसे कहते हैं दोस्तों lymphocyte. So this is a lymph, याद रखो. और ये बनता कैसे है? Now how this lymph is formed? Now please pay attention. How this lymph is formed? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बनता कैसे है और एग्जैक्टली किसे कहेंगे लिम्फ, किसे कहेंगे टिश्यू फ्लूइड और किसे कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड? समझ लेते दोस्तों, समझ लेते हैं. नाउ इसका मतलब क्या है? नाउ प्लीज पे अटेंशन. मान लो कि सपोज दोस्तों यहां पे है मान लो this is an artery and this artery carrying the blood to the tissue. ये है artery which carrying the blood to tissue और यहाँ पे दोस्तों है tissue. Suppose मान लो these are the tissue, here are the tissue, these are the tissue और cells. और मान लो ये है vein which carries the blood away from the tissue. This is the vein which carries the blood away from the tissue. Okay, this is a vein which carries the blood away from the tissue. This is the vein which is carrying blood away from the tissue and this is दोस्तों artery. ये है artery which is carrying the blood towards the tissue. This is an artery. Sorry. Concept समझ लेते हैं. lymph है क्या? This is an artery which carries the blood toward the tissue. Okay, ये है artery. Now और यहाँ पे दोस्तों है तो यहाँ पे है कैपिलरी. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है मान लो ये है here है कैपिलरी. Okay, this is an capillary. आर्टरी, वेन और बीच में कैपिलरी. एक्चुअली आर्टेरियोल्स होता है. आर्टेरियोल गेट कन्वर्टेड इनटू converted into capillary or capillary, many capillary join to form venules. Rather than using the term artery and vein, I will use the term arteriole. That will be the more corrective. Arteriole. These are the smaller blood vessel than artery. Artery से थोड़े से छोटे blood vessel है. Which get converted into capillary. ये क्या है दोस्तों? ये है capillary. मैं जरा ऊपर लिखता हूँ capillary. These are the capillary. और ये जो है this is a venule. Many capillary join to form दोस्तों venule and many venule join to form vein. Now यहाँ पे है ये टिश्यू. होता क्या है? डायरेक्ट ऐसा ब्लड और टिश्यू का कनेक्शन नहीं होता है बच्चों. डायरेक्ट ब्लड और टिश्यू का कनेक्शन नहीं होता है. नाउ यहाँ पे जो स्पेस है इसे कहते हैं टिश्यू स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस. नाउ मान लो यहाँ पे जो हमें स्पेस मिला है
this space is called as दोस्तों, this space is called as a, this space is named as a interstitial space. Interstitial space, a space between tissue. interstitial space, बीच में भी ये यहाँ पे भी टिश्यू हो सकते हैं, पर मान लो ये है इंटरस्टिशियल स्पेस, दैट इज दिस इज अ ब्लड वेसल और ये है टिश्यू, दिस इज ब्लड वेसल और ये है टिश्यू. नाउ व्हाट हैपन आता जे काही फ्लूइड है, जो भी कुछ फ्लूइड है दोस्तों, जो भी कुछ फ्लूइड है, दैट फ्लूइड ओके काय होत असतं, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस, exchange of material or gases between blood vessel and tissue occur at a capillary level. यहाँ पे एक्सचेंज होगा क्या? आंसर इज नो. आर्टेरियल लेवल पे एक्सचेंज होईल का? नो. वेन्यूल लेवल पे नो. आर्टेरी लेवल पे नो. वेन्स लेवल पे नो. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ऑकर एट द दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू ऑकर एट अ कैपिलरी लेवल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिलरी वॉल जो होते हैं उनकी जो परमेबिलिटी वो ज्यादा है. आर्टेरियल वॉल ट्रिपल होते हैं, वेन्यूल के भी और वेनस के भी वॉल ट्रिपल होते हैं, वेन के भी, पर यहाँ पे सिंगल वॉल होता है कैपिलरी में. सो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होता है. क्या होगा समजून, आता नॉर्मल गोष्टी सांगतो. काय होईल, नॉर्मल गोष्टी काय होईल की दोस्तों, की ब्लड मध्ये आहे ऑक्सिजन, तो ऑक्सिजन इकडं टिश्यूला पाठवलं जाईल. ब्लड मध्ये आहेत न्यूट्रिएंट्स, ते न्यूट्रिएंट्स सुद्धा टिश्यूला पाठवले जातील. आणि this run through the tissue space. आता आणि जे टिश्यू मधनं CO2 रिलीज होणार आहे, that CO2 enter into the blood. ओके, आणि जे भी वेस्ट मटेरियल इन्वॉल्व होणार आहे, वेस्ट मटेरियल from tissue, that also enter into the blood. But that blood vessels are not direct in contact with the tissue. There is some space between blood vessel and tissue, and that space is called the interstitial space. Interstitial space. Now please pay attention. And exchange of gases कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? Exchange of gases occur at a capillary level, और exchange of nutrient and waste material occur at a capillary level. Now ये जो फ्लूइड होता है, आता इकडून काय ब्लड मधल्या सगळ्याच गोष्टी येत नसतात. ओके, यहाँ से सब कुछ नहीं आता है, सिर्फ दोस्तों फ्लूइड, न्यूट्रिएंट, कुछ स्मॉल प्रोटीन, बड़े नहीं, स्मॉल प्रोटीन, आणि ब्लड कार्पुस्कल तो बिल्कुल नहीं, एक्सेप्ट लिम्फोसाइट. जो ब्लड कार्पुस्कल है दोस्तों, ब्लड कार्पुस्कल में बहुत सारे क्या है, WBC, प्लेटलेट्स एंड आरबीसी. आरबीसी येत नाहीत, प्लेटलेट नाही, आणि लिम्फोसाइट मधले, ल्युकोसाइट मधले पण फक्त लिम्फोसाइट येतात, आणि मग हे फ्लूइड असतं. ओके, नाउ ये जो फ्लूइड है दोस्तों, दिस फ्लूइड, ओके, दिस फ्लूइड, हे फ्लूइड तिथनं लीक होत असतं कुठनं, कॅपिलरी मधून. आणि मग वाया दिस फ्लूइड, ओके, दिस फ्लूइड एक्ट एज दोस्तों मिडल मैन. दिस फ्लूइड एक्ट एज इसका मैंने नाम दिया है मिडल मैन जैसा काम करता है, मिडल मैन जैसा काम करता है ये फ्लूइड बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू. दिस फ्लूइड एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू, एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज दोस्तों टिश्यू फ्लूइड. ह्या फ्लूइडचं नाव आहे, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ टिश्यू फ्लूइड. ह्याचं नाव असतं टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड. टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड. मग हे फ्लूइड कॅपिलरी मधनं बाहेर येतं, कॅपिलरी मधनं परत जातं, कॅपिलरी मधनं बाहेर येतं, कॅपिलरी मध्ये परत जातं. बाहेर येताना ऑक्सिजन आणि न्यूट्रिएंट घेऊन येतं, परत जाताना CO2 आणि वेस्ट घेऊन जातं. ये जब फ्लूइड बाहर आएगा तो कैपिलरी से दोस्तों साथ में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेके आएगा, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, दिस ऑक्सीजन गोज टू दोस्तों, this oxygen goes to tissue, this nutrient goes to tissue, और टिश्यू से जो CO2 निकल रहा है that goes to दोस्तों blood capillary with the help of this fluid. So there is always a movement of, there is a inward and outward movement of fluid occur between tissue space and capillaries. तो ये fluid आता जाता रहता है, और only occur at capillary level, only occur at capillary level. Now please pay attention. ठीक है, नाउ प्लीज पे अटेंशन. ये मिडल मैन है कोण, ये टिश्यू फ्लूइड. नाउ होतं कधी कधी काय, आता जरा लक्षात द्या, पुढचा कॉन्सेप्ट असा आहे की व्हाट हॅपन, सपोज व्हाट हॅपन, दिस आर्टेरियोलने लक्षात ठेवा काय केलं, आर्टेरियोलनं सपोज 100 ml
ब्लड घेऊन आलाय आर्टेरियल, 100 ml ब्लड घेऊन आलाय आर्टेरियल, असं समजायचं. 1000 ml ब्लड घेऊन आलाय एक टिश्यूला, पर्टिकुलर टिश्यूला. कितना लेके आया ब्लड? 1000 ml. नाउ ये 1000 ml ब्लड लेके आया है, तो दोस्तों वो पूरा का पूरा ब्लड उसने, ब्लड बोले तो फ्लूइड, ब्लड मध्ये ब्लड कार्पुस्कल बाहेर येत नाहीत. ब्लड कार्पुस्कल, आरबीसी और प्लेटलेट आर एब्सेंट इन लिम्फ. सिर्फ लिम्फोसाइट होते, बाकी के भी ल्यूकोसाइट नहीं, सिर्फ लिम्फोसाइट होते. इसलिए नाम है, लिम्फ में जो टिश्यू है उसी उनका नाम होता है लिम्फोसाइट. 1000 ml ब्लड आलेलं आहे इथं, आणि इकडं मात्र 900 ml गेलं, किंवा समजूया 900 ml. 900 ml हे समजा एक 1-2 मिनिटाचा टाइम आहे. इथं 100 ml ब्लड तसंच राहिले, किंवा फ्लूइड तसंच राहिले, 100 ml फ्लूइड तसंच राहिले, लक्षात ठेवा. ओके, कॉर्पुस्कल मीन्स ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट्स का. यस, 100 ml फ्लूइड तसं राहिले. दैट 100 ml फ्लूइड इज दोस्तों नथिंग बट टिश्यू फ्लूइड. दैट 100 ml फ्लूइड इज नथिंग बट टिश्यू फ्लूइड. बट हर बार, अगर हर मिनट में 100 ml फ्लूइड जर का इथं अक्युमुलेट होईल, तो देयर विल बी द स्वेलिंग. उसे कहते हैं इडिमा. इडिमा मीन्स, इडिमा मतलब दोस्तों एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस. इसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेट, नॉर्मली इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड है. इंटरस्टिशियल स्पेस में ये टिश्यू स्पेस. इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब होता है दोस्तों टिश्यू स्पेस, द स्पेस बिटवीन द टिश्यू. यहाँ पे फ्लूइड होता है, पर ज्यादा अगर एक्यूमुलेट होता है तो उसे कहते हैं इडिमा. अगर यहाँ से मुझे कोई, यहाँ पे मुझे कोई जोर से मारता है खड़क, तो थोड़ी देर में क्या आ जाएगा? स्वेलिंग. और ये स्वेलिंग क्यों आ गया है? कि क्योंकि मेरे कैपिलरी रप्चर हो गया है और वहां से फ्लूइड लीकेज हो रहा है, एंड दैट फ्लूइड इज गेटिंग एक्युमुलेटेड इन दैट इंटरस्टिशियल स्पेस, एंड दैट कॉजेस द स्वेलिंग. उसे हम कहते हैं इडिमा. उसे हम कहते हैं इडिमा. आगे जाके इडिमा का मतलब होता है दोस्तों एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस, जो कि क्वाशरकर सिंड्रोम में था. इडिमा मैंने पढ़ाया था, क्वाशरकर सिंड्रोम. आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूं. तो हर बार ये 100 ml फ्लूइड एक्युमुलेट होगा तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा. इसलिए हमारे बॉडी ने क्या किया है? अनदर एक लिम्फेटिक सिस्टम नाम का एक सिस्टम बनाया. सो ये जो टिश्यू फ्लूइड है, इसे रिमूव करने के लिए हमारे बॉडी ने एक लिम्फेटिक सिस्टम बनाया है, एक लिम्फ वेसल बनाया है. चलो उसके बारे में बात करते हैं. लिम्फ वेसल काय असतात जरा लक्ष द्या. आता लिम्फ वेसल काय कॉन्सेप्ट आहे? ओके, पुढे सांगतो, मग पुन्हा ते लिम्फचं कंपोजिशन वगैरे सगळं पुन्हा येईल. Just try to understand the concept. So this. Finish. So this. Now see this. See this diagram. That is a lymph capillary म्हणजे काय? What is the concept of lymph capillary? What is the concept of lymph capillary म्हणजे काय? समजून घ्या. Now this is दोस्तों, ये है tissue space. That is a tissue space. आणि हे आहे tissue fluid. बर, लक्षात ठेवा. नाउ मी असं नाव देतो, हा आहे टिश्यू स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस. त्याच्यामध्ये आहे दॅट इज अ टिश्यू फ्लूइड. दिस इज अन टिश्यू फ्लूइड ये वाला. ओके, नाउ हा काय? दिस इज अन आर्टेरियोल. हा काय? आर्टेरियोल आहे. कुठून कुठं ब्लड घेऊन यायला लागलाय? लक्षात ठेवा. कुठून कुठं ब्लड घेऊन यायला? हे आहे आर्टेरियोल. इट कॅरीज द ब्लड इन दिस डायरेक्शन. यह है arteriole, carries the blood in this direction. This is an arteriole. Okay, carries the blood in this direction. Now high venule. हा ब्लड कसं कॅरी करायला? लाईक दिस. हाय वेन्यूल. लक्षात ठेवा. काय आहे याचं नाव? वेन्यूल. वेन्यूल, छोटीशी व्हेन म्हणजे वेन्यूल. आता व्हाट आर दिस? दीज आर दोस्तों कैपिलरीज. ये क्या है? What are these? These are the blood capillaries. याचं काय नाव देईल? These are the blood capillaries. Blood capillaries. Capillary कोणते?
ब्लड कॅपिलरी, ये वाले, these are the blood capillary. आणि हे जे ग्रीन कलर्स आहे, these are दोस्तों, this is lymph capillary or lymphatic capillary. lymphatic capillary आहे, लक्षात ठेवा. lymph capillary किंवा lymphatic capillary. आता काय होतं लक्षात ठेवा. होतं काय, आता इकडून ब्लड यायला लागले, वाया कॅपिलरी, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस ऑकर विथ हेल्प ऑफ कॅपिलरी. हे टिश्यू फ्लुइड आहे. आता काय होतं, ह्या ब्लड जे आहे त्याच्यातलं फ्लुइड लीक होतं, टिश्यू स्पेस मध्ये जातं आणि त्या टिश्यू फ्लुइड मध्ये परत पुन्हा ते तिथून टिश्यूला जातं आणि पुन्हा तेच फ्लुइड कलेक्ट होऊन वाया व्हेन्युल्स ते बाहेर जातं. पण काही फ्लुइड तसंच तिथंच राहतं आणि प्रत्येक वेळेस ते फ्लुइड तिथे अक्युमुलेट होऊ नये आणि स्वेलिंग होऊ नये नॅचरली, म्हणून नेचरनं काय केली, दुसरी सिस्टम तयार केली, त्याला म्हणायचं लिम्फॅटिक सिस्टम. आणि त्याची ही लिम्फॅटिक कॅपिलरी आहे. ही त्याची लिम्फॅटिक कॅपिलरी तुम्ही जर बघत असताल तर ह्या लिम्फॅटिक कॅपिलरीज आहेत, ह्या ब्लाइंड असतात, एका साईडला, एकाच साईडला ओपन आहेत. दीज आर द लिम्फॅटिक कॅपिलरीज. Okay, they are blind at one end and they absorb the remaining tissue fluid, and that remaining tissue fluid when enter into, okay, when that remaining tissue fluid enter into, okay, when that remaining tissue fluid enter into that lymphatic vessel, त्याला म्हणायचं असतं, लक्षात ठेवा, उसे कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं lymph. हे आहे lymphatic vessel. This is a lymphatic vessel. कशासाठी? To remove the टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू स्पेस. इसका मेन पर्पज ये है टू रिमूव द टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू स्पेस. समझे? यस और नो? कळतं हे बेसिक गोष्ट काय आली? सो हे लिम्फॅटिक व्हेसल. परत पुन्हा सांगतो आणखी वेगळ्या पद्धतीने. दिस इज अन लिम्फॅटिक व्हेसल. ओके, हा, आता जरा लक्ष द्या, परत पुन्हा वेगळ्या पद्धतीने सांगायचा प्रयत्न करतो. See this concept, see this diagram. This is very important. Again, see this diagram. So what is this? ये है दोस्तों arteriole. This is an arteriole, okay, carrying blood in this direction. This is an arteriole which carries blood in this direction. ये है arteriole, okay. Now, और बीच में दोस्तों ये है जो रेड और ब्लू कलर के जो है ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, ओके. दीज आर द टिश्यू सेल्स. ये छोटे छोटे आपको देख रहे हैं टिश्यू सेल, और ये जो फ्लूइड है अंदर का उसे कहते हैं टिश्यू फ्लूइड. नाउ दिस इज एन वेन्यूल which carries the blood in this direction. This is a venule, और ये venule नंतर पुन्हा काय होईल, वेन तयार होतं, वेन. नाउ ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, that is, these are the lymphatic capillary. ह्या ज्या ग्रीन कलरच्या कॅपिलरी दिसायला, these are the lymphatic capillaries. समजा, इमॅजिन करा काय कॉन्सेप्ट आहे. समजा सांगतो, ह्या आर्टेरियोलनं काय केलंय, आर्टेरियोलनं 100 ते सांगतो तुम्हाला 1000 ml ब्लड सप्लाय केलाय टिश्यूला, 1000 ml ब्लड सप्लाय केलाय. पण व्हेन्यूल मधनं काय आहे, समजा व्हेन्यूल मधनं किती निघायला लागलाय, इथं समजा असेल तर 1000 ml आणि व्हेन्यूल मध्ये किती आहे समजा 900 ml. तर प्रत्येक वेळेस जो 100 ml ब्लड किंवा फ्लूइड इथं राहायला लागलाय, दॅट 100 ml, हे तर 1000 ml झालं, ओके, तिकडे 900 ml. that 100 ml blood दोस्तों, that 100 ml blood, sorry, fluid is removed by these capillary. ये उनका काम है. this 100 ml fluid is removed by, मग तिथं ठेवायचं कशाला 100 ml? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. प्रत्येक काय तिथून सगळंच नाही निघत आहे, पण जे एक्सेसिव व्हायला लागले, एक्सेसिव ब्लड, उसे रिमूव किया जाता है. वहां फ्लूइड रखना क्यों है? क्योंकि देयर इज नो कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन blood capillary and tissue. There is no contact between blood capillary and tissue. ऐसा नहीं कि हर एक टिश्यू को, हर एक सेल को ब्लड कैपिलरी का सप्लाई नहीं है. ब्लड कैपिलरी क्या करते हैं, they releases their nutrients through the tissue. They releases their nutrient through the tissue fluid. आता जरा लक्ष द्या, काय कॉन्सेप्ट आहे हा समजून घ्यायचा आहे.
काय कॉन्सेप्ट आहे समजून घ्यायचा आहे, आता जरा लक्ष द्या. ओके, हे कळालं, हे लिम्फॅटिक व्हेसल आहे. हा कॉन्सेप्ट पुन्हा एकदा समजून सांगतो. इमॅजिन करा मुलांनो, काय आहे की एक इमॅजिन करा, इमॅजिन करा हे एक छोटस गाव आहे. ओके, हे एक छोटस गाव आहे. इमॅजिन करा, सिनारिओ हायपोथेटिकल डायग्राम आहे, आणि हा गाव ह्या नदीच्या पल्ल्याड आहे. इथपर्यंत हा रोड छान आहे, इथपर्यंत हा रोड एकदम बढिया आहे. लक्षात ठेवा, इथपर्यंत हा रोड एकदम बढिया आहे. इथपर्यंत व्हेकल्स प्रॉपर मार्गाने येत असतात. ठीक आहे, इथपर्यंत ज्या व्हेकल्स आहेत त्या प्रॉपर मार्गाने येतात, पण पुढं मात्र प्रॉब्लेम होतो. इथपर्यंत व्हेकल्स प्रॉपर मार्गाने येतात, पण पुढं मात्र प्रॉब्लेम व्हायला लागतो. लक्षात ठेवा, इथं काहीच प्रॉब्लेम नाही. प्रॉब्लेम आहे इथून पुढं. इथं व्हेकल्स यायला लागल्यात. ओके, इथं व्हेकल्स यायला लागल्यात. ठीक आहे, इथं काय प्रॉब्लेम नाही. इथपर्यंत गाड्या यायला लागल्यात, इथपर्यंत गाड्या येत आहेत, पण प्रॉब्लेम, लक्षात ठेवा, प्रॉब्लेम इथं जात नाही, इकडे गाड्या जात नाहीत. हा रोड आहे. व्हॉट इज ये रोड, हाईवे, ये है दोस्तों रोड, ये है रोड, हाईवे. ही आहे सपोज रिव्हर, ये है रिव्हर. ओके, रिव्हर, आणि इकडं आहे, हे आहे विलेज, आणि तिथं आहेत विलेजर. ओके, नाव, आणि हे काय बाय असिस्टंट रोड आहे. लक्षात ठेवा, हा काय रोड आहे, तुम्हाला कळणं गरजेचं आहे. हा काय रोड आहे. तर होतं काय, हा रोड आहे. ठीक आहे, मग होतं काय, ह्या रोडनं गाड्या आल्यात, पण इथं नदी आहे. इथं नदी पलीकडे आपल्याला काय देत नाही, पण ह्यांना ऑक्सिजन आणि यांना पुरवठा करणं गरजेचं आहे, न्यूट्रिएंट्स आणि ह्याचा बाकीच्या गोष्टीचा. आणि तिथून जो कचरा बाहेर निघतो तो काढणं सुद्धा गरजेचं आहे, आणि त्यांना रोज नवीन नवीन गोष्टी देणं सुद्धा गरजेचं आहे, तरच हे जगल. नाव इमॅजिन करा, मग ह्या ट्रक इथं यायला लागल्यात, इथं कचरा काय करायला, त्या ट्रक जे काही माल आहे
ते ह्या इथं नदीमध्ये टाकतात आणि नदीमधून मग पुन्हा इथं आहेत होडी वगैरे म्हणा, होडीच्या साह्यानं, ठीक आहे, जे काही ह्या गावाला लागणार आहे ते मटेरियल ह्या होडीच्या साह्याने ह्या गावापर्यंत जातं, ठीक आहे, जे त्याला लागणार आहे. आणि जो कचरा वगैरे आहे पुन्हा तोच होडीच्या मदतीनं पुन्हा ह्या नदीतनं कुठे तर रोडवर आणि पुन्हा इथून पुन्हा पुढे जातो. हा एक कॉन्सेप्ट है. नाउ दोस्तों अगर हमारे सिनेरियो में बात करें तो ये रोड इज इक्विवेलेंट टू, प्लीज रिमेंबर, रोड इज इक्विवेलेंट टू यहाँ पे ब्लड वेसल्स है. रोड इज इक्विवेलेंट टू ब्लड वेसल्स. रोड इज इक्विवेलेंट टू ब्लड वेसल. नाउ रिवर इज इक्विवेलेंट टू टिश्यू फ्लूइड. River is equivalent to tissue fluid, or that village is equivalent to tissue. Village equivalent to tissue. So that river जैसे एक्ट है मिडल मैन, वैसे ही टिश्यू फ्लूइड एक्ट एज ए मिडल मैन. पर कभी कभी क्या होता है, ये टिश्यू फ्लूइड बहुत एक्सेस होता है, तो इसको रिमूव करने के लिए दोस्तों एक सिस्टम बने हमारे नेचर ने, उसे कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. आता कळलं, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट हिंदी में दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं. ये रोड है, ये रिवर है, ये है विलेज. तो हम विलेज में जाने के लिए कोई रोड नहीं हमारे पास. दैट रोड इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद विलेज. देयर इज अ रिवर बिटवीन रोड एंड विलेज, एंड दैट रिवर दोस्तों उसमें फिर वाटर है. तो व्हाट हैपन कि अगर कोई भी ये जो हमें इस विलेज को जो भी लगने वाला है यहाँ के लोगों को, तो वो बाय रोड लेके तो आते हैं, पर अगर उस विलेज में पहुंचाना है तो वाया उस रिवर ही जाना पड़ेगा. और यहाँ से जो बनता है, जो भी इसका वेस्ट मटेरियल वगैरह बनता होगा, ओके, उसको वहां से रिमूव करना है, तो फिर डायरेक्ट और वाया इस रिवर के थ्रू इस रोड के ऊपर उसको लाके रखना होगा जो भी मटेरियल बनता है. सो इसका मतलब क्या है, हमारे बॉडी में भी ये रोड का मतलब है ब्लड कैपिलरीज, ये जो रिवर है मतलब है टिश्यू फ्लूइड, और ये विलेज है मतलब दोस्तों ये है टिश्यू, और विलेज का हर एक घर मतलब है सेल. तो सेल को जैसे हमारे बॉडी को सेल को लगेगा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट बच्चों, तो ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट तो वाया रोड कैरी किया जाएगा, मींस ब्लड वेसल तो उसे कैरी करेंगे, पर वो डायरेक्टली सेल को नहीं देते. दे रिलीजेस दैट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट इनटू द टिश्यू फ्लूइड. फिर वो टिश्यू फ्लूइड कैरी करता है हर एक सेल के पास क्या, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट. फिर सेल जो है और टिश्यू रिलीजेस CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू टिश्यू फ्लूइड, और फिर वाया टिश्यू फ्लूइड वो आ जाता है कहाँ पे, ब्लड वेसल में और वेन्यूल्स में, और फिर वो कैरी किया जाता है टुवर्ड द किडनी टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और टुवर्ड द लंग्स टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी. बट कुछ फ्लूइड यहाँ अगर ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो क्या किया जाता है, ये फ्लूइड यहाँ पे ज्यादा एक्यूमुलेट ना हो, इसलिए एक नया सिस्टम बनाया, उसे कहते हैं दोस्तों लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें होता है लिम्फेटिक फ्लूइड, दैट इज अ लिम्फ प्लाज्मा, और लिम्फेटिक वेसल दैट इज अ T lymphocyte और B lymphocyte. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मींस लिम्फ प्रिवेंट फ्लड ऐसा बोल सकते हैं, लिम्फ प्रिवेंट फ्लड ऐसा बोल सकते हैं. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लक्षण रहा. नाउ समझा, आगे चलते हैं. नाउ जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, हमेशा याद रखो, जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारे बॉडी का, लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक है दोस्तों दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें हो गया लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ, और दोस्तों दैट इज अ लिम्फेटिक ऑर्गन, या फिर पहले लिखते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन. लिम्फेटिक ऑर्गन ये 12th में है सिलेबस में आपको, लिम्फेटिक ऑर्गन. फिर दोस्तों दैट इज लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फेटिक वेसल, एंड लिम्फ मींस वो है फ्लूइड, लिम्फ म्हणजे फ्लूइड. नाउ लिम्फेटिक ऑर्गन में फिर दोस्तों दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं बताता हूं, सिर्फ आप नाम याद रखो. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, म्हणजे जिथे त्या ब्लड वेसल, सॉरी, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, ओके, जहां पे जो लिम्फोसाइट है वो बनते हैं या फिर मैच्योर होते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन. और बाकी के जो है उसे कहते हैं दोस्तों सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन. सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन. टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज. ओके, अगर आपके पास 12th का बुक है दोस्तों, अगर आपके पास 12th का बुक है
तो यहाँ पे ओपन करो पेज नंबर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, पेज नंबर 153 इम्यून सिस्टम इन बॉडी लिम्फोइड ऑर्गन वाला टॉपिक है। इम्यून सिस्टम इन बॉडी और टॉपिक है लिम्फोइड ऑर्गन एंड ऑल दैट। देखो ये दिख रहा है, पढ़ पा रहे हो, दिख रहा है नहीं? लिम्फोइड ऑर्गन फोकस हो रहा है नहीं? यस और नो? फोकस हो रहा है नहीं? लिम्फोइड ऑर्गन, बोन मैरो, थाइमस, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ओके, आप पेज नंबर 153। ओके, सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दोस्तों? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। हा प्रश्न विचारला जातो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। याद रखो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में दो ही एग्जांपल है दोस्तों, एक है दैट इज बोन मैरो एमसीक्यू, बोन मैरो एमसीक्यू, और दूसरा दोस्तों दैट इज अ थाइमस नाम की एक ग्लैंड होती है, थाइमस। और ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में यहाँ पे बहुत सारे हैं, एक होगा लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स हमारे बॉडी के अंदर, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स लिम्फ नोड। देन दोस्तों दैट इज टॉन्सिल्स लिम्फ नोड, पियर्स पैचेस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, वर्मीफॉर्म अपेंडिस आल्सो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। मैंने कहा था वर्मीफॉर्म अपेंडिस इज आल्सो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आहे, हे मी सांगितलं होतं, ठीक है। स्प्लीन, that is spleen, that is Peyer's patches of small intestine, Peyer's patches, नाव आहे Peyer's patches of small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इलियम में ही होते, स्मॉल इंटेस्टाइन त्याच्या फक्त इलियम वरच आहेत इंटेस्टाइन, पियर पैचेस। और दोस्तों लास्ट में दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिस, वर्मीफॉर्म अपेंडिस, हे सगळे काय सेकंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आहेत। जर तुम्हाला हे 11th ला माहित असतील तर महत्वाचं। लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, स्प्लीन, पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन खास करके कहां पे होते? इलियम में होते हैं। कहां पे है? इलियम में, डिओडेनम और जेजुनम में एब्सेंट है। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आणि बोन मैरो एंड थाइमस। नाउ हाउ टू रिमेंबर? ये लिम्फोसाइट क्या करते हैं? जो लिम्फोसाइट है दोस्तों दैट इज बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दे किल द एंटीजन, दे किल द एंटीजन एंड द बैक्टीरिया और पैथोजन जिसके ऊपर वो एंटीजन है। तो लक्षात ठेवा व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी क्यों कहा गया है यहाँ पे दोस्तों? मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट ऑकर, साइट ऑफ प्राइमरी लिम्फोसाइट आर, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर साइट फॉर, साइट ऑफ दोस्तों मॅच्युरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। ज्या लिम्फोसाइट बनतात त्या मॅच्युअर होतात, मॅच्युरेशन ऑफ लिम्फोसाइट इथं होतं। लिम्फोसाइट सैनिक आहेत लक्षात ठेवा, मॅच्युरेशन इथं होतं प्रायमरी लिम्फोइड ऑर्गन मध्ये। त्यांची पूर्ण तयारी, सैनिक आहेत ते आपल्या बॉडीचे, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, त्यांची पूर्ण तयारी, त्यांचा आखाडा म्हणजे प्रायमरी लिम्फोइड ऑर्गन आहे। त्यांना तलवारबाजी, त्यांना भाले फेक, त्यांना म्हणजे काय म्हणतात घोडस्वारी, हे सगळं शिकवलं जातं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ओके, वो नॉर्मली ट्रेनिंग सेंटर है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है दोस्तों? ये ट्रेनिंग सेंटर है, हा ट्रेनिंग सेंटर आहे, प्रॉपर तिथे ट्रेनिंग होतं, एखाद्या मिलिटरीचं ट्रेनिंग सेंटर आहे। त्या सैनिकांना सगळं शिकवलं जातं, रनिंग, ठीक आहे, गोली कशी चालवायची, सगळं 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 ट्रेनिंग सेंटर म्हणजे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। वहां पे वो मैच्योर हो जाते हैं। सैनिक जे नॉर्मल आर्मी मध्ये भरती झाली, इमॅजिन करा,
त्या मुलांना प्रॉपर ट्रेनिंग दिलं जातं आणि मग त्यांना आर्मी मॅन बनवलं जातं, मिलिटरी ओके मिलिटरी मॅन बनवलं जातं, ठीक आहे, आर्मीचा मॅन बनवलं जातं. हे कॉन्सेप्ट आहे, लक्षात ठेवा. समजतंय? हे ट्रेनिंग सेंटर आहे आणि ते होतं बोन मॅरो आणि थायमस मध्ये. ते कुठं? बोन मॅरो आणि थायमस मध्ये ट्रेनिंग सेंटर. नाउ एक्चुअल लिम्फ नोड टॉन्सिल स्प्लीन पेयर पैचेस, यहाँ पे एक्चुअल इंटरेक्शन होता है लिम्फोसाइट एंड एंटीजन का. तो ये है दोस्तों साइट ऑफ इंटरएक्शन, साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ lymphocyte, site of interaction of lymphocyte and antigen means यहाँ पे ही जी काय ये है युद्ध भूमी, ही काय युद्ध भूमी आहे. इथं खरं भांडणं सुरू होतात. दिस इज अन युद्ध भूमी है. ओके, या फिर बैटल फील्ड कह सकते हैं हम इसे, बैटल फील्ड है. ओके, जहां पे बैटल होता है बिटवीन लिम्फोसाइट एंड एंटीजन. कहां पे? ये सेकेंडरी लिम्फोड में, ऑर्गन में. सो लिम्फोसाइट कम इन कॉन्टेक्ट विद एंटीजन एंड वहां पे बैटल फील्ड है. और ये ट्रेनिंग सेंटर है. क्या? प्राइमरी लिम्फोड ऑर्गन इज अ ट्रेनिंग सेंटर. तो हाउ टू रिमेंबर? बीटी मींस बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फोड ऑर्गन, और lymph node, tonsil, spleen, pair patches of small intestine located only in ileum, absent in duodenum and jejunum. वो भी एक MCQ है. home appendix, these are secondary lymphoid organ. ये क्लियर हो गया, इनका काम क्लियर हो गया, इनका नाम क्लियर हो गया. तो याद कैसे रखेंगे? याद रखो टर्म बीटी. बीटी मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन. याद कैसे रखेंगे? टर्म याद रखो बीटी. बीटी मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन. बीटी का मतलब होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अगर कोई, ठीक है, याद रखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये प्राइमरी लेवल का काम होता है. अगर एक्सीडेंट हुआ है और पेशेंट कैजुअलिटी में आया और आपने देखा कि बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है और पेशेंट का पल्स एकदम फीबल लग रहा है, ओके, पेशेंट का पल्स ही नहीं लग रहा है या फिर बहुत ही कम लग रहा है, तो ये पेशेंट बहुत बैड सिचुएशन में, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा दो. उसका ब्लड ग्रुप और क्रॉस मैचिंग करेंगे और जो भी उसका ब्लड ग्रुप है पहले उसे बीटी देंगे. बीटी मींस ब्लड ट्रांसफ्यूजन. प्राइमरी लेवल पे पहले तो क्या करेंगे? उसका जहां से भी ब्लड लीकेज हो रहा है उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे और फिर बीटी देंगे. अगर बीटी को लेट कर दिया तो शायद पेशेंट की डेथ हो सकती है. तो बीटी प्राइमरी लेवल पे देंगे. बीटी प्राइमरी, कैजुअलिटी में अरेंज करेंगे. शिफ्ट होने तक क्योंकि टाइम लगता है ना, शिफ्ट होने तक वो पेशेंट का ब्लड बैग आ जाएगा और हम लगा के उसे वार्ड में भेज देंगे थोड़ा सा स्टेबल करके. सो बीटी मींस ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्राइमरी लेवल पर काम होता है. बोन मैरो, बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर थाइमस. तो ये प्राइमरी लिम्फोड ऑर्गन. समझ में आ रहा है क्या? नहीं. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी लिम्फोड ऑर्गन? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी लिम्फोड ऑर्गन? जहां पे आर्मी की ट्रेनिंग होती है वो है प्राइमरी लिम्फोड ऑर्गन, जहां पे युद्ध होता है वो है सेकेंडरी लिम्फोड ऑर्गन. और प्राइमरी लिम्फोड ऑर्गन दो ही, बोन मैरो और थाइमस. याद रखो. तो ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो भी जितने सारे लिम्फोसाइट है, दे आर सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो. But B lymphocyte get matured in bone marrow and T lymphocyte get matured in thymus. MCQ. thymus का लोकेशन क्या है? thymus का लोकेशन है यहाँ पे नेक में. आई एम सो सॉरी, नेक पे तो थायराइड है. चेस्ट में लोकेशन है बिलो द स्टर्नम, बिलो द स्टर्नम एंड वेंट्रल टू एओर्टा, वेंट्रल टू एओर्टा. हार्टच्या वेंट्रल साइडला पण स्टर्नमच्या खालच्या साइडला आहे थायमस ग्लैंड का लोकेशन. ये थाइमस ग्लैंड है दोस्तों. थाइमस ग्लैंड कुछ हेल्प इन इम्यूनिटी. और कोविड में जो ओल्ड एज पर्सन, उनकी क्यों डेथ हो रही है? क्योंकि उनमें ये थाइमस ग्लैंड नहीं होता है. तब तक वो डिजेनरेट हो जाता है एट द एज ऑफ 55. 55 के बाद किसी में भी ये थाइमस ग्लैंड नहीं होता है. 55 के बाद किसी में भी ये थाइमस ग्लैंड नहीं होता है, वो डिजेनरेट होता है दोस्तों. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. फिर लिम्फॅटिक वेसल क्या होता है याच्यामध्ये? मग काय असतं लिम्फॅटिक वेसल मध्ये? तुम्हाला लिम्फॅटिक कैपिलरी और लिम्फ. दोस्तों ये क्या है? लिम्फ. व्हाट इज लिम्फ? इट इज द, याद रखो, लिम्फ क्या है? इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. आता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड? ओके, सो देयर इज नो आरबीसी एंड प्लेटलेट. आरबीसी एंड प्लेटलेट्स एब्सेंट होते हैं. आरबीसी एंड प्लेटलेट्स एब्सेंट है. ओनली लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट. ओनली लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट. लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट. ये ऐसे जिसमें एक ही ब्लड सेल आहे, दे आर लिम्फोसाइट. आरबीसी प्लेटलेट नाही आहेत त्याच्यामध्ये. हे आहे लिम्फ, हे आहे लिम्फ. लक्षात घ्या. पुढे जाऊया. आता तुम्हाला एकदा वाचून दाखवतो काय कॉन्सेप्ट आहे.
जरा लक्ष द्या. मिनरल कंपोजिशन ऑफ ब्लड अँड लिम्फ इज ऑल्सो सेम. थाइमस नाम का एक ग्लैंड है, थाइमस नाम का एक ग्लैंड है. ओके, याद रखो हमेशा, थाइमस नाम का एक ग्लैंड होता है, दैट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे है, और वेंट्रल टू हार्ट, थाइमस ग्लैंड. और थाइमस ग्लैंड एक थाइमोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए. थाइमस ग्लैंड जो है दोस्तों, थाइमोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है. Say this is the thymus gland. ओके, ये तो मिल ही गई. मिल, say this is thymus, this is thymus. ऐसा हे अरे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम ओपन झालं. ओके, कोई बात नाही, डाउनलोड होतं काय. Say this is thymus gland. ये है थाइमस. ओके, बिलो द स्टर्नम, आणि ये हा है हार्ट. ये क्या है, हार्ट. हार्ट. नाउ पुन्हा मग एओर्टा, ही आहे थायमस ग्लँड. वेंट्रल टू हार्ट आहे किंवा वेंट्रल टू अवोर्टा असं म्हणता येईल. वेंट्रल टू अवोर्टा असते. काय लोकेशन आहे, लोकेशन थायमस ग्लैंडचं लोकेशन, लोकेशन ऑफ थायमस बिलो द स्टर्नम. थायमस क्या है दोस्तों, नंबर 1 बिलो द स्टर्नम. स्टर्नम जो बोन है इसे कहते हैं स्टर्नम बोन, ये चेस्ट बोन है. बिलो द स्टर्नम, स्टर्नम चेस्ट बोन है, स्टर्नम एंड अबो द आर्च ऑफ अवोर्टा, एंड अबो द और वेंट्रल टू रादर देन अबो, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. वेंट्रल टू आर्च ऑफ अवोर्टा, आर्च ऑफ अवोर्टा, ये आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा याद रखो. और फिर ये लोब्ड ग्लैंड है, राइट लोब, राइट लेफ्ट लोब, ये है थाइमस. अब ये जो थाइमस ग्लैंड है, इट सीक्रेट दोस्तों, रिलीज वन हार्मोन, रिलीज हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है दोस्तों दैट इज थाइमोसिन. ये आगे चल के सिलेबस में है सब. उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन. क्या नाम है, थाइमोसिन. एंड थाइमोसिन, okay, this hormone help in immunity, this hormone play important role in immunity. ये आपको पता होना चाहिए. this hormone play important role in immunity. okay, लिम्फ थोड़ा पैराग्राफ वाचतो. as the blood passes through the capillary in tissue, some water along with many small water soluble substances moves out into the space between the cells of the tissue, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessels. Okay, water or some water soluble substances moves out into the space between the cells of tissue, and फिर blood vessel में क्या रहेगा, large protein and most of the formed element remain in the blood vessel. This fluid release out, it is called as the interstitial fluid or tissue fluid. It has the same mineral distribution as that in the plasma. MCQ. Now exchange of nutrient or gases etc between the blood and cell always occur to this fluid. An elaborate network of vessel called as a lymphatic system collect this fluid and drain it back to the major vein. आणि पुन्हा major vein मध्ये जात असतं, lymphatic vessel ने ते collect केलं. Now that fluid which is present in lymphatic vessel, it is called as a lymph, which is colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for immune response of body. Lymph is also an important carrier for nutrient and hormone. Now एक lacteal vessel होते हैं, fat are absorbed through the lymph in the lacteal vessels present in the intestinal villi. तो lacteal का नाम सुना है आपने. थायरॉइड ग्लँड आणि थायमस ग्लँड आर डिफरंट. हे वरचं थायरॉइड आहे इकडं, ते ट्रकियाच्या अलॉंग आहे, आणि खाली थायमस आहे. थायरॉइड नेक मध्ये, थायमस चेस्ट मध्ये. थायरॉइड वेगळं ग्लँड है, थायमस वेगळं ग्लँड है, समझते हैं, टोटली अलग है. तो ये हो गया लिम्फ दोस्तों. और लैक्टियल के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं. लैक्टियल, दीज आर द लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन व्हिच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट. यस और नो. कितने बार एमसीक्यू आया है, लैक्टियल्स क्या होते हैं.
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिम्फ। कल इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके तो नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज सर्कुलेटरी पाथवे, मीन्स सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड खत्म हो गया, बात करेंगे सर्कुलेशन, ठीक आहे। तो आज मला जायचंय जरा लवकर एका ठिकाणी, आज आपण थांबूया बस, ठीक आहे। तुमचे डाऊट मी उद्या घेतो। बरं, आता तुमची उद्याच्याला एक्झाम आहे, बरोबर आहे की नाही? तर रेडी राहा, ठीक आहे। तुम्हाला ऑल द बेस्ट। तुमची एक्झाम जी असणार आहे ती 1:15 ला एक टायमिंग ठेवूया रेग्युलरचा, जे जुने मुलं आहेत त्यांचा, आणि जे नंतरचे त्यांचा इव्हिनिंगला ठेवूया, ठीक आहे। उद्याच्याला मी सेमिनार घेणार होतो आपला, म्हणजे जे फाउंडेशन सुरू करतोय आपण 5 ऑगस्टला त्याचा, पण आपण सोमवारी तो सेमिनार घेऊया, सोमवारी, किंवा बघूया सोमवारी 8 वाजता घेता येईल तर चांगले। सोमवारी तुम्ही तुमचे जे मित्र असतील किंवा तुमचे जे घरातले असतील त्यांना जरूर सांगा फाउंडेशन बद्दल, मग तिथं आपण सगळं कसं घेणार आहोत, काय घेणार आहोत त्या सेमिनार मध्ये, त्याची फीस काय असेल मी सगळं डिक्लेअर करेल त्या दिवशी, ठीक आहे। तर उद्यासाठी तुम्हाला गुड लक। तरी आपण आता 1:30 वाजता भेटणारच आहोत। आपल्याला काय कम्प्लीट करायचंय? ॲनिलिडा कडे जायचं आपल्याला, ॲनिलिडा कम्प्लीट करायचं, ॲनिलिडा आणि जमलं तर आर्थ्रोपोडा, ठीक आहे। थँक्यू सो मच, ठीक आहे। पॅरेंट टीचर मीटिंग पण कंडक्ट करूया, ठीक आहे। पॅरेंट टीचर मीटिंग पण कंडक्ट करूया, त्यापेक्षा ते मायक्रो मीटिंग पाहिजे, अशा मोठ्या मीटिंग पेक्षा त्याच्यात जास्त फायदा आहे त्या, ठीक आहे। मायक्रो मीटिंग कंडक्ट करूया आपण रोज, थोडी थोडी थोडी, एक 20-30 लोकांची जर कंडक्ट केली तर त्याचा फायदा होईल। असं 200-300 मुलांना किती पॅरेंटला बोलता येईल? 30 पॅरेंटला, म्हणजे मला बऱ्यापैकी सगळ्या पॅरेंटला बोलता येतं। तशी मायक्रो मीटिंग कंडक्ट करूया, इम्प्रुव्हमेंट मायक्रो मीटिंग नाव असणार आहे तिचं। ही पुढच्या आठवड्यापासून आपण कंडक्ट करायचा प्रयत्न करूया, ठीक आहे। हे आठवडा झाल्याच्या नंतर किंवा सोमवारपासून कंडक्ट करूया मायक्रो मीटिंग, आठवण करून द्या मला सोमवारी सकाळी, ठीक आहे। बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशन, रोल नंबर 1 पासून पहिले 30, नंतर किंवा पहिले 40, नंतर पुन्हा पहिले 30 असं करूया, 30 किंवा 40 घेऊया, ठीक आहे। आणि मग तिथं तुम्हाला मला डायरेक्ट बोलता येईल। इम्प्रुव्हमेंट मायक्रो मीटिंग नाव असतं त्याचं, ठीक आहे। ते आपण कंडक्ट करणं गरजेचं आहे जरा, ठीक आहे। त्याच्यात फायदा होईल तुम्हाला, म्हणजे आणखी आपल्याला डायरेक्शन वगैरे ठरवता येईल कसं जायचं काय, तुम्हाला चांगलं आणखी इंडिव्हिज्युअल लेवलला मला गाईड करता येईल, ठीक आहे। सोमवारपासून सुरू करूया मग। मला सकाळी आठवण करून देता ना इम्प्रुव्हमेंट मायक्रो मीटिंग, मी लगेच बनवून घेतो किंवा आजच मी बनवून घेतो, पण तरी पण त्या दिवशी आठवण करून दे, ठीक आहे। मग त्यामध्ये लक्षात ठेवा, सोमवारी रोल नंबर तुमचा कधी कुठून चालू होतो? 1000 पासून रोल नंबर आहे का तुमचा? 1000 ते 1001 ते 1030 पर्यंत सोमवारी मुलं, 1001 ते 1030 सोमवारी, ठीक आहे। हा, अजय जगताप, वाव, चालते। फिर इज द आर्च ऑफ अओर्टा, अथर्व शिंदे, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आर्च ऑफ अओर्टा कुठे आहे? आर्च ऑफ अओर्टा माहित नाही, ठीक आहे। मग कशाला तुम्ही आम्हाला सांगायला की आर्च ऑफ अओर्टा सर? आम्हाला हे तर सांगा आर्च ऑफ अओर्टा, क्या बात है यार सर। आर्च ऑफ अओर्टा काय असतं? मला वाटलं हे तुमचं झालं असेल कदाचित, पण असंच चुकीचं आहे। एओर्टा कहाँ पे होता है? बघा आता बेटा, ही झाली डायग्राम, हे झालं हार्ट, हे झालं हार्ट। तर हार्ट मधनं हा आहे आर्च ऑफ अओर्टा, सिदिस, हा हे हार्ट आहे ना, हार्ट मधनं जे लार्जेस्ट व्हेसल बाहेर पडले याला म्हणायचं आर्च ऑफ अओर्टा। हे बघ, हे आर्च आहे असं बाणासारखं, आर्च ऑफ अओर्टा। हे बघ, हे इथं क्लिअर दिसेल, तिथं तरी चुकीचं दाखवलंय, थोडं इथं आणखी क्लिअर आहे। हे आर्च ऑफ अओर्टा आहे बघ, हे आर्च आहे, बाणासारखे ना, हे असं आहे, म्हणून आर्च ऑफ अओर्टा। हार्ट मधनं बाहेर पडणारी सर्वात मोठी आर्टरी आहे आर्च ऑफ अओर्टा, समजतंय? आज थोडं लवकर थांबूया, बाय। यस यस यस,